السلام علیکم، پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی۔ ناظرین، آج بات کریں گے جائیداد کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے اپنے دوست کی مدد سے بڑے بھائی کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر ایک نہر میں پھینک دیا۔ لاش 2 ماہ تک نہیں ملی، اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کس طرح سے گرفتار ہوئے اور انہوں نے یہ کارروائی کس طرح سر انجام دی، یہ تفصیلات جانتے ہیں ایس ایچ او طاہر ڈوگر کی زبان۔ کیا یہ واقعہ ہے؟ کیوں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا؟ کیا وجہ سامنے آئی؟ کیسے تفتیش کی؟ یہ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ جو یاسین نامی جو قتل ہوا ہے نا، اس کا اپنے بھائی محمود کے ساتھ آلریڈی پہلے جھگڑا چل رہا تھا جائیداد کا بھی، اور محمود نے یاسین نے محمود کو پہلے کو فائر بھی مارے تھے۔ اچھا، اس کا بھی مقدمہ رجسٹر ہوا جس میں وہ جیل بھی رہ کے آیا تھا۔ صحیح۔ تو جو محمود ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یاسین مجھے نقصان پہنچائے گا، یاسین میرے ساتھ کیوں کرے گا۔ وہ اس چکر میں ہو گیا کہ میں کسی طریقے سے اپنے بھائی کو ٹکانے لگا دوں۔ صحیح۔ وہ پہلے فائر کس وجہ سے مارے تھے؟ پہلے بھی ان کی یہی جائیداد کی اور یہی گھر میں جو تھا وہ اس وجہ سے فائر مارے تھے۔ اب جب اس نے کہا تو ایک عظیم نامی بندہ جو کہ یاسین کا دوست تھا، وہ رہنے والا تھا وہ کوٹلی ابو بکر کا، اس کو اس نے ورگلایا پھسلایا محمود نے کہ یار تم کسی طریقے سے نا وہ تمہارے اعتماد میں آ جائے گا، یاسین کو اپنے پاس بلاؤ تو میں اس نے کوئی پیسے بھی دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے 1 لاکھ دیا، وہ کہتے ہیں 4 لاکھ دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، مطلب اجرت ہی سمجھ۔ اجرت دے بلانے کے لیے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں چونکہ یہ پہلے ادھر رہتا رہا، عظیم ادھر رہتا رہا تھا، دوستی تھی اس کی۔ دوستی تھی، وہ آیا اس کو ملنے ملانے کے لیے کہ وہ پہلے ادھر رہتا رہا یہ وہ سارا۔ جب وہ اسے ملنے آیا تو اسے ملا اور ساتھ میں باتوں باتوں میں اس نے پوچھا یار بچوں کا کیا حال ہے، یہ انہوں نے ٹھیک ہے۔ تو بچی اس کی 2 شادیاں تھیں یاسین کی، پہلی بیوی مر گئی تھی، دوسری جو ہے وہ اس سے 2 بچی ہیں جو مدیہ ہے بشیرہ بی بی۔ تو اس نے اسے کہا کہ کیا حال ہے بچوں کا، بچے ٹھیک ہیں، اور یار منڈے کی شادی کرنی لڑکے کی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ اب اس کو یہ پوائنٹ مل گیا، انہیں کہا اچھا رشتہ ڈھونڈیں، انہیں کہا جی ڈھونڈیں۔ یاسین نے کہا مجھے رشتہ نہیں ملا، مجھے رشتہ نہیں ملا۔ تو وہ عظیم نے کہا رشتہ ڈھونڈیں، انہوں نے کہا جی ڈھونڈیں۔ تو وہ گاؤں واپس چلا گیا، وہاں سے جا کے اس نے کچھ دنوں کے بعد یاسین کو فون کیا کہ یاسین یار رشتہ دیکھا ہے تم آ جاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ کو اور بہن کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم رشتہ دیں۔ انہوں نے تم اکیلے آ جاؤ، میری بیوی ہے بہن ہے، ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے اس کے بعد تم ان کو لے آنا۔ وہ اس لیے کہ وہ ساتھ آئیں گے تو پھر تو وہ کام نہیں ہوگا۔ اس جگہ پہ جانا تھا یہ کھڈیاں کے علاقے میں؟ نہیں کھڈیاں کا نہیں، وہ رائے ونڈ کوٹرا دا کشن کا۔ اچھا، کوٹرا دا کشن، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر چلا گیا جی، اور یہ کہتے اب یہ تفتیش میں آیا کہ بوتل دی محمود نے اس کو کوئی نشہ وشہ ڈال کے کہ آپ اس کو پلا دینا۔ وہ جب گیا وہاں پہ اس نے اس کو پلا دی۔ عظیم نے؟ عظیم یا اس کی مسز یا جو بھی گھر والوں نے؟ ٹھیک ہے۔ وہ ادھر جو بیٹھا تھا تو انہوں نے پلا دی۔ وہ جب وہ پلا دی تو بے ہوش ہو گیا، اوپر سے وہ محمود آ گیا، انہوں نے اس کو مار دیا وہیں پہ فائرنگ کر کے مارا؟ وہ چھری سے، وہ کہتے مار تو اس سے گیا، لیکن بعد میں یہ اب پوسٹ مارٹم میں کلیئر ہوگا کہ اس کو پھر، کیونکہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی وہ پھر ملی تھی حویلی لکھی سے نہر میں، وہ گلی گلی ہوئی تھی، اس سے وہ ایس سچ نہیں پتہ چلا کہ اس کو۔ اچھا، یہ ڈیڈ باڈی کب ملی؟ کیسے آپ کو اطلاع موصول ہوئی؟ موقع پر گئے کیا؟ وہ یہ ایسے بنا کہ اس کی بیوی نے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ایکچولی بلائنڈ مرڈر تھا۔ بلائنڈ مرڈر۔ ہاں، اس کی بیوی نے اغوا کی اپلیکیشن دی اور اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا۔ صحیح۔ اس تھانے میں کھڈیاں میں؟ کھڈیاں میں، اچھا، کیونکہ وہ ادھر سے ادھر کے رہنے والے تھے۔ صحیح۔ اب اس کو شک تھا اس کے بھائی پہ، اپنے وہ دیور پہ، جو اس کا فون تھا وہ انہوں نے لے لیا تھا، وہ آن تھا، اس کے فون سے کال کرتے تھے اس کے گھر، تو وہ کہتے ہیں اویل ہو جی کال تو آ رہی، وہ تو زندہ ہے، وہ تو ادھر ہے، وہ تو ادھر ہے۔ جب اس کی سیڑھیاں لینی، کبھی وہ
किधर की। जो ड्राइवर था वो आगे जाके फिर आएगी। उन्होंने जब ये एप्लीकेशन आपके पास आ गई, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, एप्लीकेशन आ गई, मुकदमा दर्ज, अगवा का। अगवा का। अच्छा, नामजद किया नामालूम पे? नामजद किया उन्होंने। अच्छा। पहले हाँ जी, नामालूम था, नामजद था इन्हीं भाइयों पे। अच्छा, ये पहले नामालूम ही किया ना, वो बाद में बाद में ततीमा बयान हाँ, हुआ। वो बाद में फिर हाँ। वो इन पे अब उसके पास जो वहाँ पे जब उन्होंने मार लिया तो वो 1112 में मुलाजम था महमूद। उसने 1112 को कॉल की, वो आ गई। जब वो आई उन्होंने उस बेच में रखा, उन्होंने कहा ये तो डेड बॉडी है, हमने तो नहीं लेके जानी। उन्होंने कहा यार मैं मुलाजम है तो हटाइए। उन्होंने नहीं भाई, वो जब गांव से बाहर आ गई ना तो उन्होंने कहा नहीं भाई, उन्होंने उतार दी। फिर इसने क्या किया कि गाड़ी मंगवाई इधर अपने गांव से, उसको गाड़ी में रख लिया। अच्छा, जो फोन था उसको गाड़ी में छोड़ दिया और उसकी डेड बॉडी वो चूनिया के पास जाके जो डबल नहरें उसमें फेंक दी। मोबाइल नहीं फेंका? मोबाइल नहीं फेंका, बाकी उसकी सारी चीजें उन्होंने। एक तरफ से आपने अगले बार मुकदमा भी दर्ज कर लिया अगवा का? मुकदमा भी 365 का दर्ज हो गया। सही। अब जब वो कहें तो उसका मोबाइल तो चल रहा था, मोबाइल पहले तो ये खुद काले रख करता रहा, फिर उसके गाड़ी में रख दिया। वो कभी गाड़ी लाहौर होती थी तो उसकी लोकेशन लाहौर आ जाती थी। ये क्यों, किस गाड़ी में रख दिया जिसमें डेड बॉडी लेके गया। अच्छा अच्छा, वो भी इसने किसी से मंगवाई थी? हाँ, वो ड्राइवर से। वो फिर बाद में ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अच्छा। हाँ, वो गाड़ी में, क्योंकि उस पे भी उन्होंने बनता, उसने कहा जी वो मर गया है। तो वो गाड़ी में था मोबाइल, तो लोकेशन मोबाइल की आती थी, उसे भी नहीं पता चलता था। फिर थोड़ी सी उससे निकली क्लू, उसको शामिल तफ्तीश किया तो फिर उसने बताया जी कि हमने ये काम कर दिया। ये यासीन के भाई को, महमूद को पकड़ लिया आपने? पकड़ लिया, महमूद और मकसूद, दो भाई उसके। ठीक है, दोनों भाई मुलव्वस थे? दोनों भाई मुलव्वस थे। फिर उन्होंने बताया जी कि वहाँ फेंकी। फिर हमने वो नहर के साथ साथ जितने थानों की हदूद आती है सबसे पता किया कि कहीं कोई इन दिनों में डेड बॉडी। वो उन्होंने बताया कि हवेली लखे हेड सुलेमान की पे डेड बॉडी आई। सही। वहाँ से जाके वो डेड बॉडी की जो उन्होंने तो अमानतन दफना दी और साथ में पर्चा भी दे दिया था। वो तस्वीर वगैरह खींच ली होगी जो उन्होंने तस्वीरें वगैरह खींची थी ना, वो तस्वीरें फिर सही उससे शनाख्त हुआ? उससे फिर वो शनाख्त हुआ, कपड़ों से उन्होंने, उसके लाकिन ने फिर शनाख्त कर दिया उसको। वो उसके बाद फिर डेड बॉडी भी ले आए और इनको हस्बे ज़ाब्ता फिर उन्हें एप्लीकेशन दे दी, इनको फिर नामजद कर दिया। कत्ल का मामला है तो ब्लाइंड मर्डर था, जैसे आप कह रहे हैं मकतूल का मोबाइल भी चलता रहा, तो पुलिस तो बड़ी जगह पे काम करती रही होगी, बड़ा मुश्किल जी। पहले CDR निकलवानी, इसकी CDR निकलवानी, उसके बाद उसकी CDR है। आजकल जितने भी साइंसी तरीके हैं वो बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, नो डाउट। तो जैसे जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है। हमारे DPO साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस बारे में देते हैं और वो खुद भी माशाल्लाह यंग है, न्यू जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करते हैं ये जो गैजेट्स आए हैं इनसे और इससे और फिर जुर्म छुपता नहीं। हमें CDR की ज़रूरत हो फौरी मिलती है, हमें लोकेशन की ज़रूरत हो फौरी मिलती है, वो हम बताते जाते हैं। हमारी IT ब्रांच हमें साथ साथ इस बारे में इन्फॉर्म करती है। सही। तो ये मकतूल यासीन क्या करता था तारिक साहब? ये जिम्मेदारा करता था इसका। अच्छा। कोई और यहीं के रहने वाले हैं शुरू ये से? इधर का गांव है खुड़िया का, टोलन अठाड़, ये वहाँ का रहने वाले सारे भाई वहाँ पे रहते हैं वहीं पे। तो कितनी की उम्र होगी इसकी? उसकी तकरीबन 45 के करीब, 45-50 के करीब। सही। ये उससे छोटा है, 10-12 साल छोटा है महमूद। सही। हरकत की है। इसके साथ तनाज़ा कब शुरू हुआ इसका, जब इसने से गोलियां मारी यासीन? हाँ, वही इन्होंने अपने को जब खान की वंड की, जमीन की और घर की, ये वो तब इनका कोई चल पड़ा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया तो तब से। कोई कब तकरीबन FIR दर्ज हुई? इसी थाने में? ये वो वाली FIR? हाँ जी, वो 17-18 की बात है। अच्छा, 17-18। ये जो है ये 27-12 को हुई, 21 की, 27-12-21।
सही तो सही। उसको भी ऑलमोस्ट अब 2 महीने तो 2.5 महीने हो गए। इस अगवा की FIR को? जी जी। ठीक है, उसके बाद इनको कितने अरसे बाद ट्रेस किया? जब अगवा की FIR के बाद कितनी देर बाद पुलिस इन तक पहुंची? ये तकरीबन 1.5 महीने बाद सही हो गया था। फिर तब इनकी एविडेंसेस वगैरह वो कलेक्ट करते, जब हमने बिल्कुल कंफर्म कर लिया फिर इनको बताया, फिर ये उन एविडेंसेस को डिनाई ना कर सके और फिर ये नामजद मुद्दइयों की तरफ से ही किया गया था इनको जी, बाद में? नामजद उसकी जो बीवी है वो मुदैया बशीरा बीवी। उसी ने किया था। जी सर। तो फिर आपने इसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की? जी जी। तो मुल्जमान तो इतनी आसानी से मानते नहीं, किस तरह से मनवाया, कैसे किया ये सब कुछ? वो इस तरह से जब वो CDR इनके सामने रखी, वो जो इसकी अटेंडेंस थी वो ली, वो उसके बाद जो इसके पास फ़ोन था वो फ़ोन बरामद हो गया। ठीक है जी। वो मकतूल का वो फ़ोन, हाँ वो यासीन का फ़ोन इसने जला दिया था बाद में, वो हमने जला हुआ रिकवर किया, उसको हम मज़ीद PFS से भिजवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर जो उसकी मोटरसाइकिल थी वो भी हमने इनसे बरामद कर ली। ये रेस्क्यू की गाड़ी में रख के, ये रेस्क्यू की गाड़ी में रख दिया था इसने फ़ोन? ये फ़ोन इसने वो अपनी टैक्सी में रख दिया था जिसमें लाश को ठिकाने टैक्सी घूमती रही तो हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। वो महमूद की अपनी थी टैक्सी? नहीं, वो वहाँ से उसने मंगवाई थी ना, वो टैक्सी ड्राइवर मैंने आपको बताया ना, वो बाद में उसे भी पकड़ लिया आपने? वो नहीं, वो बाद में एक्सीडेंट में मर गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें इसकी मदद की एक तो इसके दोस्त ने, अजीम ने, और साथ इसके कौन मुलव्वस? भाई है इसका मकसूद। ये 3 लोगों ने मिलकर हाँ, जब उन्होंने कहा इस पे शक हुआ, उसको इधर बुलाया, तो उस वक्त वो कोई सही अपना आपको पता ना, जब पूछें तो साइकोलॉजिकली भी बंदे पे वो आता है, वो कहा। फिर हमने उससे उसकी CDR वगैरह मंगवाई, जो उसकी लोकेशन आती थी उसके बारे में पूछते कि इस दिन आप कहाँ थे, उस दिन आप कहाँ थे, ये तेरी जो नहरों वाली थी वो लोकेशन पूछेगी कि यहाँ तू क्या करने गया। जब वो लोकेशन उसे कि यहाँ तू क्या करने गया, उसका कोई वो सही जवाब न दे, ठोस जवाब नहीं। और वो नहरें भी थी। फिर हमने कहा कि पहले नहरें देखते हैं, अगर वहाँ से इसका कुछ हो गया तो फिर डेफिनेटली। फिर जब हमने नहरें सारी वो नहर को सारे चेक किया, सर्च किया, तो वो जाके हवेली रखा जिला उकाड़ा में, जब उसे डेड बॉडी मिल गई तो फिर हमने से बोला कि जो तेरी लोकेशन ये आई है ये तेरा, फिर मान गया जी मान। एतराफ पे जुर्म कर लिया। आसानी से नहीं किया, लेकिन नहीं पहले घुमाता फिर आता रहा। जी आसानी से कौन करता। कितनी की देर लगी? इवन के ये था कि ये उस फोन से इसने यासीन की बीवी को फोन किया। यासीन के फोन से? यासीन के फोन से इस महमूद ने यासीन की बीवी को फोन किया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। अच्छा हाँ, और यासीन बन के उसकी आवाज निकाल लीजिए। सॉरी, उसमें ये भी वो तो करता रहा। इसने हाँ एक और किया कि एक तलाकनामा बनाया, उस पे एड्रेस लिखा कराची का, तलाकनामा बनाया और उस पे एड्रेस लिखा कराची का, जो इधर भेज दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, लेकिन उस पे जो स्टैंप थी वो कसूर की थी। ओहो, सही सही सही। तो ऐसी जो चीजें वो मिलती गई थी जिससे फिर मतलब वो तलाक तो कराची से रहा, स्टैंप वो जो ऊपर है वो कसूर की लगी हुई है, वो फिर पकड़ा गया। वो अपना छोड़ जाते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, वो तलाकनामा भी भेजा, वो देख के परेशानी तो हुई होगी घर में काफी। उसको तो उसकी बीवी को तो हुई ना जी कि मुझे क्यों दे रहा है, वो जिंदा है, वजह क्या है। लेकिन वो कहती थी ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपके पास ले आई होगी वो? हाँ, वो हर चीज उसको हम आपने उससे भी वेरीफाई किया, वो पकड़ा गया जब आपके सामने आया था? सही। अच्छा, तो उसके बाद जब इतराफ़े जुर्म कर लिया तो क्या उसने इतराफ़ किया, क्या कहता है वो, क्या कहता है उसने, क्या बताया आपको? वो ये कहता है कि जी मैंने वो अपने दोस्त को कहा, वो मेरा दोस्त जो है उसको बुलाया, फिर मैं भी चला गया, वो बेहोश था, फिर वो उसी वजह वो ये कहता नहीं जी मैंने नहीं किया, इसने कर दिया। डॉगर साहब, मुल्ज़म जो है वो शहरी के साथ अपने दोस्त पे डालता रहा, मतलब कि इसने कत्ल किया है। हाँ, वो पहले यही करता रहा, कहता रहा कि जी इसने किया है। अच्छा, अपना नहीं जी। क्यों किया है आपने पूछा नहीं, क्यों उसने क्यों किया? बस जो वो इधर इसकी वो इकट्ठे रहते थे, उसकी बीवी भी इधर रहती थी, तो वो इस वजह से शक शुबह में ना हमें जरा घुमाने फिराने के लिए। अच्छा,
वो लेकिन क्योंकि कत्ल तो वही करेगा जो बेनिफिशियरी हाँ है, जी। या तो अल्लाह माफी दे 7 हो गया। और ये तलाक का नोटिस भेजने का मकसद भी ये था कि इसकी तलाक हो के वो जायदाद सारी इसके पास आ वो जाए। नहीं, वो तो वैसे वो भी ट्रैप करने के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, कि जिंदा है। डी ट्रैप करने के लिए जी जिंदा है अभी, ये मेरे दिल पे डाल, वो इधर यही कहते देखें जी वो ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। सही 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 सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, अब चलते हैं उस शातिर मुल्जिम की जानिब जिसने बड़ी ही होशियारी के साथ पहले तो अपने बड़े भाई का काम तमाम किया और अब जब मौक़िफ़ देने की बारी आई तो उसने अपनी बीमारी का बहाना बना लिया। और किस तरह से वो ड्रामेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है ये तो दिखाएंगे, साथ में उसके छोटे भाई और दोस्त का मौक़िफ़ भी जानेंगे जिन्होंने मिलकर इस कत्ल की वारदात को सरअंजाम दिया। और किस तरह से ये कत्ल की वारदात की, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। नाज़रीन, ये वो मरकजी मुल्जिम है जिसने अपने भाई को कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया। सबसे पहले इसी की जुबानी जानते हैं कि ये किस तरह से इस वाक़े को बयान करता है। की ना है तेरा है? लत्तां च दर्द हो रही कि मुंह च दर्द हो रही? चक्कर आ रहा, गले च आवाज गले च आवाज नहीं निकल रही? किन्ने दिनों तो? सर कल तबीयत बहुत खराब हुई। खराब हुई। नाजरीन, इंतहाई शातिर मुल्ज़मान है। दो भाइयों ने मिलकर एक भाई को मौत के घाट उतारा, साथ में अपने दोस्त को भी मुलव्वस किया। इस वक्त एक मरकज़ी मुल्ज़िम जो महमूद है, जिसने ये सारी प्लानिंग की, वो यहाँ पर ड्रामे करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कह रहा है मेरी तबीयत बहुत नासाज है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये इंतहाई ड्रामेबाज शातिर मुल्ज़िम है, जबकि उसके साथ उसका दूसरा भाई मकसूद जो इस कत्ल में बराबर का शरीक है, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। बवस्ते नहीं करता तेन गलती नाल इस कत्ल चू है गया कि नहीं? नहीं सर जी, मैं 8 साल तो लैदा, मैनू ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋ 6-7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਢੋਲਣ ਜੀ। ਹੈ ਢੋਲਣ। ਢੋਲਣ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਸੀਨ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਸੀਨ? ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਪਿਆਲ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ? ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ये भाई जो है ये कातिल है आपका, ये जो लेटा हुआ है कुर्सी के ऊपर? मुझे नहीं पता, कह रहा हूँ मैं 8 साल से लहदा हूँ। साइड पे जो मर्जी कोई बंदा और कोई काम कर दो, मैं मुझसे पूछो वो उसने किया है, उसने किया, मुझे पता ही नहीं। तो मैं ऐसे कह दूँ, अल्लाह मेरा गवाह है। महमूद जो है वो क्या करता है? ये महमूद ये मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन पहले भी मुलाजमत भी करता था। मुलाजमत भी करता था? रेस्क्यू में काम करता था? अच्छा। तो महमूद के ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का, सच है कि झूठ है? सर जी अल्लाह ही गवाह है, मैं ऐसे आप भी गुनहगार बन जाऊँ। नाज़रीन, हमारे साथ तफ्तीशी भी मौजूद है इस केस के, उनसे भी जानते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनी आपने सर मकसूद की बात, क्या कह रहा है ये तो मुलव्वस ही नहीं है, हमें पकड़ लिया ऐसे बेगुनाह? नहीं जी नहीं, ये गुनाहगार है, ये शातिर है, ये तीनों ही शातिर आदमी हैं। तो इन्होंने सारा मंसूबा इन्होंने मिलकर किया है। इसमें ये इसके बकाया जो भाई हैं ना, ये सारे ये एक तरफ है, वो अकेला एक तरफ था। अच्छा, वो एक तरफ था। सही सही। ये तमाम जो घर वाले हैं, बल्कि इनकी जो वालदा भी है, जो भी इन सबको एक ही प्रोग्राम था इनका। एक ही प्रोग्राम था, उसे मारना, उसको मारने का सिर्फ। सही सही। इन्होंने मिलकर उस दूसरे आदमी जो अमीन और फजीम खड़ा है, मौलवी साहब, इनके इसके साथ इन्होंने जो इसको कत्ल करने के लिए जो पैसे वगैरह जो भी इनको दिए हैं, तो इन्होंने मिलकर सब ने दिए हैं।
ये मतलब मुलव्वस है पूरे का पूरा मुलव्वस है, ये बिल्कुल मुलव्वस है जी। और इन्होंने पहले बयान भी दिए हैं, कल वाले जो है उनके साथ भी ऐसा करते रहे, आज आपके साथ भी ये यानी शातर बन रहे हैं। शातर बन रहे हैं, सही सही। हाँ भाई शातर सुना की कह रहे हो, की कह रहे पुलिस अफसर? वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनके च मुलव्वस नहीं है। वो कह रहे हैं आप झूठे हैं, आप अपराधी हैं, आप कातिल भी हैं और आप झूठ भी बोल रहे हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं? आप बताएं ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सर मेरी विच लोकेशन आवे या मैं विच ना लवां, कोई बंदा कह देवे या कोई किसी साबित हो जावां, फिर मैं गुनहगार हां, नहीं तो मैं वरना गुनहगार। अच्छा लोकेशन साइड ते मोबाइल रख के काम लाए? नहीं सर जी, हाँ। मैनू पता हुंदा ते मैं इत्थे इन्हां नाल छुट्टी करके पर आंदा। फिर जान छूट जाएगी जो झूठ बोल के मसलसल कह के। ना सर जी कभी। चलो ठीक है, अब उस मुलजिम की तरफ चलते हैं जिसने इस कत्ल की वारदात में इनका साथ दिया है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ओ यासीन ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀ। महमूद? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। यासीन नु क्या ਹਾਂਜੀ दोस्त आए नाल ओदे? ਹਾਂਜੀ अच्छा किन्ने के दोस्त सी? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ। यासीन दे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀ। अच्छा महमूद दे? ਹਾਂਜੀ। हैगा सी ना? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਛਾਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਲਟਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਸੀਨ? ਸ਼ੇਖਮ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ੇਖਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖਮ ਹਾਂਜੀ। ਇਲਾਕੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚਲਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਕੋਲਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਿਆ ਉਹ ਬੋਤਲ ਛੋਤਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਤਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਖਮ ਦਾ? ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ? ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਰਮੀ ਸਖਤੀ। यासीन को के महमूद को? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋ। महमूद ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। यासीन तेरे कहने ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਾ ਸੁਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਸੁਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਾ ਕਰ? ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਪਰ ਅਲਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਲਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਥਾਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਰਾ ਨੂਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫੜਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਜ ਫੜ ਲਿਆ? ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਜ ਫੜਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਛੁਪਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ 365 ਦਾ ਜੋ ਗਵਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, वो फिर रहा है। लेकिन पहले दिन इन्होंने वकूआ जो पहले दिन सरजद कर दिया था, उसको पहले दिन इन्होंने कोई चीज़ जो उस तरह भी किया हलाक कर दिया उसको। उसके बाद ये सिर्फ अपने आप को ये छुपा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये बिल्कुल शामिल है। जो चीज़ इसने दी है, जहरीली जो चीज़, अगर कोई नशावर चीज़ दी है तो वो इसने दी है इसको, महमूद ने। लेकिन पिलाने वाला वो है क्योंकि उसने इनके हाथों से नहीं पीने थी, क्योंकि वो इनके साथ उसका झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने इनसे वो चीज़ नहीं पीनी थी, वो चीज़ इसी ने ये पिलाई है। और मैया जो करने वाला वो ये आदमी है, इसने मुझे बताया कि मैंने ला कर दिए। ये 1122 में है, इसको ये बेहोशी वाली चीज़ों या इन चीज़ों से सब पता है, इन चीज़ों को ये समझता है, जानता है, इसने मैया की है। लेकिन तो ऐसी हरकतें करके हिदायतुल्लाह साहब जैसे ये कर रहे हैं तो ये छूट जाएंगे? नहीं, छूट कैसे जाएंगे? ये इंशाल्लाह ताला ये सजा लेंगे, जो इन्होंने किया है, जैसा किया वैसा भरेंगे, बिल्कुल। ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਜੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਆਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੈਰ ਵਜੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ? 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ? 5 ਭਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ 3 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, 1 ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ? ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਫੜੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈਦਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਲੱਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ 5 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 1 ਹੀ। 1 ਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 6। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਮੈਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਬੜੀ ਢਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। नहीं जी, ये बिल्कुल मुलवस है साथ, बल्कि बवक्त वकूआ ये नाल है, बवक्त वकूआ ये नाल है। ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੀ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਵਕੂਆ ਨਾਲ ਹੈ, क्योंकि साढ़े कोल कोई तस्वीरां वहाँ जिथे इन्होंने ये वकूआ किया है जहाँ पर, तो वहाँ पे एम्बुलेंस जो है 1122 ये भी गई है।
ये इसने मंगवाई है। इसने मंगवाई है। हाँ जी। हाँ, वो लाश तो डालती वहाँ नहीं पर है। कुछ कपड़े, कुछ पाँव, इनके कोई तस्वीर साथ थोड़ी ही आती है। जो उसका बेटा है साजिद और राशिद, तो वो पहचानता है कि ये मेरा चाचू के कपड़े हैं, और ये मकसूद खड़ा हुआ है, और ये जो है महमूद खड़ा हुआ है, वो इनको पहचानता है। तो उसने पहचान कर कहा कि ये जो कपड़े हैं ये मेरे चाचे मकसूद के हैं, और वो जो है खड़ा है, ये पाँव जो शलवार वगैरह नज़र आ रही है, महमूद खड़ा हुआ है। और उसके साथ ही वो जो है ये 1122 वाले, उनकी भी वहाँ पर एक वर्दी और बूट टांगों वो नज़र आ रही हैं, तो वो उनकी भी तस्वीर साथ खड़ी हुई है। अच्छा। कि वो वाकई गए हैं, और बल्कि वो मान गए। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने दरख्वास्त दी है शामिल तफ्तीश होने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हम गए हैं, लेकिन जो बयान है वो कल इंशाल्लाह ताला मेरे पास शामिल तफ्तीश होंगे, तो तमाम बात जो सामने क्लियर हो जाएगी। क्लियर वो ये भी बताएंगे कि ये कितने आदमी हैं। वो उधर जब से उन्होंने उठा लिया, उसके बाद उन्होंने उसे किसी अदारे को देना था, जो उन्होंने इसको दे दिया है रास्ते में। उन्होंने मुझे बताया है, उनके अफसरान ने, कि हमने पूछा, उन्होंने बताया कि ये जो वारस है, इन्होंने कहा कि अब जो नाश है हमें दे दें, हमने इनका आगे जो नहीं लेकर जाना। तो इनके कहने पर वारसान की ये बने हैं, हमें नहीं पता था इनका क्या मामला है। तो हम तो 15 की कॉल पर गए हैं, लेकिन इनको वारस समझकर हमने इनके हवाले कर दिए। वारस समझ के इनके हवाले कर दिए। तो जो शामिल तफ्तीश इंशाल्लाह ताला होंगे, बकाया जो खुद जो मुलाजिम है जो गया है मौका पे, तो ये तो बात उनके अफसरान ने मुझे बताई है, तो ये हकीकत हो गया कि वो गए हैं। और ये जो 1122 है, ये गई भी खुडियाँ से है, खुडियाँ से गई, और मैंने उधर जाकर दफ्तर में जो उनके अफसरान हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कसूर से नहीं गया, ये हमारी गाड़ी गई है, लेकिन ये खुडियाँ से गई है। सही खुडियाँ से ही गई। खुडियाँ मतलब से गई आपने है, मुकम्मल उसकी बल्कि उन्होंने तफ्तीश की उनको है। पाबंद कर दिया है कि वो इंशाल्लाह मेरे शामिल तफ्तीश होंगे कल शामिल तफ्तीश होंगे। नाजरीन, ऐसा भी होता है, पुलिस का काम किस हद तक मुश्किल होता है ये तो आप देख सकते हैं, किस हद तक शातिर मुल्ज़मान भी मौजूद हैं। एक जो है वो मुसलसल ड्रामेबाजी कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या हो गया, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तीसरा इतनी सी बात मानता है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने बुलवाया है, लेकिन आगे से उसने मार दिया है, मुझे नहीं पता, मैं अपनी फैमिली के साथ चला गया। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन तफ्तीश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मुल्ज़मान अपने बयानात से मुनहरफ हो जाएं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलती। तो हमारी पुलिस किस तरह से काम करती है, ये आप हिदायतुल्लाह साहब जो इस केस के तफ्तीशी हैं, पहले SHO से भी गुफ्तगू हुई, तमाम तफसीलात उन्होंने भी बताई कि क्या तनाज़ा था, किस वजह से कत्ल किया गया। लेकिन इस तरह के ड्रामेबाज लोग भी होते हैं जो पुलिस से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केस पर असर अंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि अदालत में सबूत पेश करना होते हैं, और उन सबूतों की ही वजह से इनको सज़ा मिलेगी। तो पुलिस हुकाम तो मुतमईन हैं कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि इनको इनके किए की करार वाक़या सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन अब तक वो पिछले हम 2 से 2.5 या 3 घंटे के से ज़ायद वक्त हो गया हमें इस थाने में, खुडिया में, वहाँ पर वो वैसे ही ड्रामे करता हुआ जो मरकज़ी मुल्ज़िम महमूद है वो दिखाई दे रहा है। उससे बोला भी नहीं जा रहा। वो 5-6 साल पहली अपनी जो टांग पे लगी हुई गोली है उसे दिखाता है कि उसे ये गोली लगी हुई है, और उस गोली की वजह से उसकी समात जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है, क्योंकि गोली टांग पे लगी है तो बोला उसके मुंह से नहीं जा रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरा मुल्ज़िम जो मकसूद है वो भी भाई है, वो भी कहता है उसको पता ही नहीं उसका भाई कब कत्ल हुआ है। तो पुलिस किस तरह से काम करती है, किस तरह से सबूत इकट्ठा करती है, और किस तरह से मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए काम करती है, आज के केस में आपको वाज़ेह नज़र आ जाना चाहिए कि इतनी आसानी से ये ख़तरनाक शातिर मुल्ज़मान जो हैं वो मानते नहीं। इनको मनवाना भी एक काम है, और ये पुलिस को ही आता है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इनको इनके किए की करार वाक़ई सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो यहाँ पर ड्रामे कर लें, शातिर जितने मर्ज़ी बन जाएँ, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भी नहीं बचे। और पुलिस ने इस केस को, जो अंधा कत्ल था यासीन का, उसको सॉल्व भी कर लिया। इसके दोनों भाई उस कत्ल में मुलव्विस निकले, साथ उसका एक दोस्त था उसको शामिल किया गया था। ये 3 मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी है, अब इन्हें मज़ीद जेल में भिजवाया जाएगा, जुडिशल किया जाएगा। नाज़रीन, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि छोटे भाई ने
जायदाद की लालच में अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। वो खुद तो तबाह हुआ, अपने भाई के खानदान को भी तबाहो बर्बाद कर दिया। इसलिए खुददारा ऐसे फैसले लेने से पहले अपने मामलात को बेहतर तरीके से हल कीजिए ताकि इस तरह का भयानक अंजाम ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।